I think Arshad is saying bad behavior. I just heard that. Okay, jokes aside, I mean say जो नहीं बतला दे कि मैं रवीना के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि she has been very very professional. आज भी याद है मुझे, एक मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा था जहाँ पे सनसेट होने वाला था, और सनसेट होते वक्त मतलब सिर्फ 25-30 मिनट थे, एंड जो ग्रीन रूम था वो काफ़ी दूर था, एंड शी हैड टू क्विकली चेंज एंड कम. दैट वाज इम्पॉसिबल, बट आई स्टिल रिमेंबर शी वेंट इनटू द जनरेटर वैन, और जनरेटर वैन में जाके फटाफट चेंज करके आई. सो दैट has been and a lot of changes have happened. She is a brilliant actor, and एक और चीज़ जो बदली है, पहले हीरोइन थी अब हीरोइन की माँ है. So that's it. Thank you. Hi, hello, Samina here. My question is to Ahmed sir and Disha. Ahmed sir, to you, from the world of choreography to the world of directing, and having such a stellar cast, and it's a huge star cast when I say so. How was it, for you? Was it challenging? And my question is to Disha, to kind of do a performance on a song which is done by Katrina Kaif. How was it for you? Hi, ma'am. I can't see you. I'm sorry. Yeah, I'm here. I'm here. Oh, hi. Hello. Yeah. Okay. It's my second film with Ahmed sir, and it's just been the most beautiful journey ever. Coming on set was like literally coming for like a school trip. Every day we all became friends. It's one of the most beautiful experiences of my life, and yeah, I'm extremely grateful. I'm a huge fan of Katrina, and I used to love the song. I still remember telling Akshay sir, I was like, can you please get this song? And we used to dance on this track all the time. So I'm really, really grateful that I got a chance to be a part of this track and do something which is like super fun. And yeah, we had a lot of fun doing it. Moving on to you, Ahmed sir, like from the world of choreography, to the world of directing, and managing such a stellar star cast, such a huge star cast. How was it? Any challenges that you faced, or it was all cool? Maybe it connects well because as a choreographer, you're used to seeing 200 dancers at a point, and many actors, 10 actors dancing. So वो coordination, so your eyes can actually, it's like the cockroach compound eyes वैसा दिखता है. So maybe that helped me to do this entire thing. And when you have actors who are so disciplined, and actually we all were thinking कि कोई problem कहीं से आएगी, but actually उस चक्कर में ही सब किसी ने भी problem नहीं create की. So you can understand getting them together was for me as a choreographer easy, and I've worked with everybody in my this 25-30 years of choreography. So that made it easy. वो easy हो गया था. रही बात इस गाने की ऊंचा लंबा कद, I would like to really thank Anand Raj Anand to give this track जो आज भी relevant है, and it's been revamped by, and it's been revamped so beautifully, and by where are they? Mega, love you. Okay. So it's been revamped so beautifully, and of course अक्षय, आप अक्षय कुमार को उस वक्त देखो और आज देखो, energy level आप ही है. So to shoot such a song with the man who's done it better than what he did that time, I can say it proudly. I mean, it's not possible without an Akshay Kumar. Akshay sir, your center. Ahmed ji. Akshay sir, your center. Rahul here from the Filmi Charcha. इसमें एक लाइन था कि मिस वी फीलिंग जागी वहाँ. फीलिंग जागी? हाँ, वी मिस यू. मिस क्या होगा आपने? तो स्क्रिप्ट में था कि आपका लाइन था, वो इंस्टेंट आया? नहीं, फीलिंग पहले से है, तो जागी नहीं पहले ही, और इसीलिए बोल दिया. मतलब स्क्रिप्ट में नहीं था वो? नहीं, स्क्रिप्ट में नहीं था भाई. स्क्रिप्ट में आपको क्या लगता है नीरज वोरा ने लिखा होगा या फरहाद ने लिखा होगा? बेटा अहमद सर ने बताया डेवलप हुआ है. कोई नहीं लिख सकता, वो यहाँ से लिखा था. दिशा का रिएक्शन क्या था वहाँ पे? हाँ, दिशा का रिएक्शन क्या था वहाँ पे? बेटा मैं थोड़ी उसका पीए हूँ, उससे पूछ. जो आपका है, आपका क्या था रिएक्शन? वाओ. सेम. अहमद जी, भावना शर्मा नवभारत का जो बाद में जो स्क्रिप्ट लिखी है, वो खुद एक जाने माने डायरेक्टर है, साम जी बैठे हुए हैं.
तो स्क्रिप्ट के लेवल पे इतने एक्टर्स को इतने अच्छी तरह से एडजस्ट करना, वो भी 2-2.5 घंटे की टाइम में, कितना डिफिकल्ट था आपके लिए भी और साम जी आपके लिए भी, राइटिंग के लेवल पे जो डायलॉग्स वगैरह लिखे हैं? वेल वही एक चैलेंज था कि इतने सब को लेके वो 2.5 घंटे में ही फिट करना, नहीं तो ये 5 घंटे की फिल्म भी कम पड़ती। बट वो लिखावट इतनी प्यारी थी नीरज वोरा की, एंड देन फिरोज नडियाडवाला, ही लुक्स वेरी सीरियस बट ही इज़ अ वेरी ह्यूमरस मैन। तो जो राइटिंग उन लोग ने जो दी थी वॉज सो ब्यूटिफुली डन, तो आधा स्ट्रेस वहीं ख़त्म हो गया था। एंड द टुगेदरनेस ऑफ द एंटायर टीम कि ये तू बोल दे, ये तू बोल दे, मैं रिएक्ट करूँगा, इतना अच्छा गिव एंड टेक था। आप अगर देखो तो इट्स एन एन्सेम्बल ऑफ ऑल डिफरेंट फिल्म्स जो हमने अगर कैलकुलेट करो तो सब कॉमेडी ह्यूमर फिल्म्स के एक साथ इसमें आए हैं। तो दे आर वेरी गुड विद टाइमिंग, so it didn't give me any problem to finish that. And as you said, Neeraj Vora is known for that clean writing. So this film is actually a family universe. So Firoz Nadiadwala always says is 5 to 95. So everybody can come, enjoy the film and have a great time, जो हम लोग ने इसमें किया। And आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी कि कुछ नयापन था, कुछ तो आपने जैकलीन के बाल नहीं देखे किसी ने इसमें। देखिए ना, तो द ब्लॉन्ड ऑफ जैकलीन, सो दैट इज, आप देखो कि इतनी ओपनली शी अग्री टू डू इट। सो एवरीबडी हु प्लेड अ पार्ट इन दिस एग्रीड टू डू इट सो इजीली, तो इट वाज अ केक वॉक फॉर मी इन दिस एंटायर थिंग। अक्षय सर, सर आपके लिए सवाल है। दिस इज मी विशाल फ्रॉम पिंक विला। तो सर वेलकम टू इंसानों का जंगल। अभी क्या है ना सर, आपकी बात हो रही है और आप तो हमारे लिए शेर ही हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, 36 सालों से कर रहे हैं। तो आम आदमी तो यही सोचता है बहुत हो गया यार, अभी घर बैठता हूँ, चिल करता हूँ। हमारे खुद, हमने भी सवाल नहीं पूछा, हमारे घुटने खुद जवाब देने लग गए हैं इस उम्र में। तो आपको नहीं लगता रिटायर हो जाता हूँ, बहुत हो गया यार, चिल मारता हूँ? बेटा होता है ये सुबह 4 बजे होता है जब उठता हूँ, लेकिन उसके 5 सेकंड बाद याद आता है कि मुझे शूटिंग पे जाना है। उसके बाद याद आता है कि मुझे मेरे 300 लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सेट पे जाना है। तो बस वो 5 सेकंड के लिए आता है, फिर सोचता हूँ कि रिटायरमेंट अगले दिन सोचता हूँ, फिर सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर यही रिपीट होता है। तो ऐसे करते करते 36 साल गुजर गए हैं। क्या बात तो और वैसे भी मैं तेरे को ये कहना चाहूँगा, रिटायरमेंट के ऊपर तू बोल रहा है, रिटायरमेंट का ऐसा है ना, वैसे भी मैं रिटायर अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, घर पे बैठे बैठे मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम मिल जाएगा, मैं डॉग वॉकर बन जाऊंगा, गार्डनर बन जाऊंगा, घर के सारे काम काज मुझे मिलेंगे। मुझे लगता है उससे अच्छा मैं काम पे जाऊं, रिटायर ना हूं, वो बेटर रहेगा। पर सर फैमिली के साथ बैठने का भी तो एक मन होता है ना कि यार अब इनके साथ टाइम स्पेंड होता है। हाँ, मैंने कोशिश की है। एक दिन के बाद उन्होंने कहा, बेटा पिताजी अब कब जाओगे काम करने? तो अब काम करने जाओ, बस हो गया। तो ऐसा है, बेटर है काम करते रहो यार। रिटायर, मैं तो बोलूं, सच्ची बोलूं, ये मेरे को शब्द ही बहुत गलत लगता है रिटायर। आदमी रिटायर तभी हो जब बस मरने के लिए 5 सेकंड बाकी हो। मरते मरते भाई मैं रिटायर भी हो रहा हूं, वो बेटर रहेगा। रिटायर कोई मत होना, काम करते रहना। अगर लंबी जिंदगी चाहिए तो काम करते रहना। तो भोजपुरी में एक बार कोई डायलॉग। अभी बेटे मैं पागल हूँ। एक तो फ्री में आया तो कहता फिर भोजपुरी है तेरे को, मैं फिर बोलेगा ठुमके भी दिखाओ। जैकी सर